Hello students. In the last lecture, we have discussed about the difference between formal and informal credit. We have discussed in detail that what are the basic difference between the loans taken from formal sector and the loan taken from informal sector. So now we are moving to the next slide, the remaining portion. This slide, as you could see, is having few pictures, few uh, pictorial diagrams which are having certain kind of indication about the uh, different households and the loan taken by different households. Clear? So it is basically loans taken by urban households in 2003. This is a kind of data which is being collected in 2003, as no doubt it's a very old data. So it's my request that please try to search about the recent data regarding this heading, that loans taken by urban households. But it's simply a sample in order to make you understand about that what are the changes had been taken place during the passage of time, um, in order to taking loans from both the different sectors, informal sector and formal sectors. So as you could see, the blue color shows the percentage of loans from the informal sector, and the purple color shows the percentage of loans from the formal sector. Clear? So this picture very clearly depicts that, um, in the beginning, at the very first picture, you could find out that the poor households are having a very less percentage of taking loan from formal sector, because poor households are they are not very much aware about the formal sectors of loan. As you could very well know about the formal sectors of all the systems which is being lie in formal sector, basically the banking system के बारे में जो पुअर हाउसहोल्ड्स थे वो उतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे, वो जानते नहीं थे कि ये बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और हम कैसे वहाँ से हम लोन ले सकते हैं और उसके प्रोसीजर्स क्या हैं। दैट्स वाई इनफॉर्मल सेक्टर्स का जो अ, एक इन्फ्लुएंस था सोसाइटी में इनफॉर्मल सेक्टर का, वो शुरू से बहुत ज़्यादा रहा है, बिकॉज basically the poor peoples or the illiterate peoples are try to make themselves far away from the all the cumbersome procedure of the banking sector, because they find that the banking system are so complex and so lengthy to follow, and they are not able to understand all the procedures. That's why they basically most of the time they prefer the informal sectors in order to taking loans. वो लोन लेने के लिए ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर्स की तरफ ही जाते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर्स के बारे में आप जानते हैं, जिसमें मनी लेंडर्स आते हैं और साहूकार्स वगैरह हैं जो इनफॉर्मल तरीके से लोन्स देते हैं हाई परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे, बट फिर भी लोग उनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे हाउस होल्ड्स विथ फ्यू एसेट्स। इसमें जो है जो परसेंटेज है इनफॉर्मल सेक्टर का, वो फॉर्मल सेक्टर से वो भी ज़्यादा है, 53% है। फॉर्मल सेक्टर का सिर्फ 47% ही है। उसके बाद आप वेल ऑफ हाउस होल्ड्स में जब आप जाएंगे, वेल ऑफ हाउस होल्ड्स में क्या है? वेल ऑफ हाउस होल्ड का मतलब सिंपली है जो लोग थोड़े से पढ़े लिखे हैं, थोड़े अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, एंड दे आर क्वाइट knowing the uh, for procedure of the banking sector, so they are quite more attracted towards the formal sectors in order to taking loans. So यहाँ पे आप देखिए इस पिक्चर में 72% जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया गया, और 28%
जो है वो जो वेल ऑफ हाउस होल्ड्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर पे बहुत सी ज़्यादा कम उनका एम्फेसिस रहा है। क्लियर दिस वन। ठीक है, 28% जो है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द अर्लियर 2 percentage. Now when you move to the last um, portion, uh, in which you could see the rich households, basically the rich peoples, the business families, or the rich families, basically they are much more uh, get involved in the banking sector in order to taking loans. Clear, because they are very well aware, very well abreast about the all procedures which is being followed by the banking sector in order to give loans. तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सिर्फ 10% ही जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, बाकी 90% जो है वो रिच हाउस होल्ड्स में वो है वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जा रहा है। क्लियर, सो आई थिंक इट माइट बी क्लियर टू यू। नाउ जस्ट कमिंग अप विद द नेक्स्ट स्लाइड। ओके फाइन, यहाँ पे रोल ऑफ आरबीआई को डिस्कस करने से पहले हम एक बार एक इसमें इम्पोर्टेंट स्लाइड और है जो मिस हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उन चीज़ों को भी थोड़ा सा जान लें, और इट्स माई रिक्वेस्ट दैट ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट the is that particular topic which is I'm going to discuss with you. From try to get information, retrieve the information, find out the information from the internet, and if you find any kind of problem, then we will discuss this discuss it later on. So एक्चुअली वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक आपका है आपके बुक में है, आप उसको देख सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। क्लियर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का आपने बैंकिंग सेक्टर की पूरी डिटेल पढ़ी, बार्टर सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ, उसे क्या फायदे थे क्या नुकसान थे, फिर धीरे धीरे हम मेटेलिक करेंसी पे आए, कैसे कैसे डिफरेंट डायनेस्टीज के जो एम्परर्स थे उन्होंने कैसे रूल किया, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में उन लोगों के जो करेंसीज का जो स्ट्रक्चर था, उनकी जो वैल्यू थी वो अलग हुआ करती थी, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी कम एंड एक्सेप्टेड द बैंकिंग सिस्टम। धीरे धीरे हम लोग बैंकिंग सिस्टम पे आए वेयर वी आर यूजिंग द पेपर नोट्स और द करेंसी कॉइन्स। सो धीरे धीरे ये पूरा एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ। बट अगेन यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर्स के होने के बाद भी कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आप कह सकते हैं कि वो बैंक्स को एज अ सपोर्ट काम सपोर्टिंग एजेंट के तौर पे बैंक्स के काम करते हैं। क्लियर, बैंक्स तो जो अपने एग्जिस्टेंस पे जो काम करता है वो करता ही है, उसके अलावा ये जो छोटे छोटे इनको आप सोसाइटीज कह सकते हैं, छोटे से आप इनको एजेंसीज कह सकते हैं, और इनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं जिससे हम इनको जानते हैं। अभी कुछ और आपके टॉपिक्स आएंगे जिसमें आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से कुछ चीज़ें दिखेंगी। तो अभी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम ही पूरा आपको सारी चीज़ें बयान कर रहा है कि कोऑपरेटिव्स और सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव का सिंपल मतलब होता है कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब सहयोग, मिलजुल के करना। ठीक है, इसको आप कॉर्पोरेट से मत कंफ्यूज करिएगा। कॉर्पोरेट एंड कोऑपरेट, these two things are both these two things are different from each other. Corporate is something different and the cooperate is something different. So cooperation cooperative societies means उस तरह की सोसाइटीज जो लोगों के द्वारा बनाई गई हों और उनके आपसी सहयोग से बनाई गई, आपसी तालमेल से बनाई गई।
अभी सोसाइटीज क्या काम करती हैं, इनका रूल क्या है? सो बेसिकली बिसाइड बैंक्स, the other major source of cheap credit in rural areas are the cooperative societies और the cooperatives, इसको हम cooperatives भी कहते हैं, cooperative society भी कहते हैं। तो बैंक्स के अलावा रूरल एरियाज में, अब तो खैर रूरल एरियाज में भी बैंक्स ने अपना अच्छा खासा इन्फ्लुएंस जो है वो अपना इम्पैक्ट डाल दिया है। पहले जब बैंकिंग सेक्टर अभी ग्रो कर रहा था, उस टाइम पे कुछ ऐसे सोसाइटीज थी जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम सबसे पहले आता है। वो सोसाइटीज लोगों की हेल्प करती थी बैंक तक पहुंचने में, बैंक से पैसे लेने में, बैंक से कर्ज लेने में। ठीक है। तो ये सोसाइटीज जो है वो रूरल एरियाज में बहुत ही इफेक्टिवली काम करती थी और अभी भी करती है। नाउ कम टू दी वर्किंग स्टाइल ऑफ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका काम क्या है, कैसे काम करती है, इनका वर्किंग स्टाइल क्या है? तो इनका वर्किंग स्टाइल, आई एम जस्ट गोइंग टू नरेट द होल वर्किंग स्ट्रक्चर इन अ वेरी सिंपल मैनर। इसका आप ट्राई इसका आप कोशिश करिए कि आप अच्छे से समझ जाएं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो मेंबर्स होते हैं वो, अच्छा इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं वो ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। उनका जो नाम रखा जाता है वो उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से रखा जाता है। ठीक है, ऑक्यूपेशन मतलब उनका जो कारोबार है, जो भी धंधा है, जो भी वो काम करते हैं। तो ये जो सोसाइटीज हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करके बनती हैं, और इसलिए बनती हैं कि वो एक बड़ा अमाउंट बैंक से निकाल सकें। अब इसका भी स्ट्रक्चर क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो नाम है वो एक्चुअली उनके ऑक्यूपेशन पे, जैसा मैंने बताया, कि डिपेंड करता है। तो ऑक्यूपेशन का मतलब, जैसे अगर हम कहते हैं बुनकर, यानी कि वीवर्स। अगर वीवर्स कम्युनिटी के लोग 5, 10, 8, 20 या जितने भी हैं, बेसिकली इनका इनकी इनकी एक लिमिट भी होती है। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम लिमिट तो जो है वो आपकी वही है, 15 to 20, 20 to 25, ऐसे ही लोग इसमें ऐड होते हैं। तो अगर सपोज करिए हमने कहा कि जो बुनकर कम्युनिटी के लोग हैं, वीवर्स जो हैं, उन्होंने अपनी एक सोसाइटी डेवलप की, 10, 20, 15 लोगों की हेल्प से उन लोगों ने एक अपना ग्रुप बनाया, एक अपनी सोसाइटी बनाई। और उस सोसाइटी को जो नाम दिया जाएगा वो नाम दिया जाएगा वीवर्स वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, या वीवर कोऑपरेटिव्स भी कह सकते हैं, वीवर्स कोऑपरेटिव्स। ठीक है, इनको नाम हमने वीवर्स कोऑपरेटिव दे दिया। उसी तरह से अगर आप कहें कि कुछ इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो अपनी एक सोसाइटी बनाना चाहते हैं। ठीक है, वो अपने लोगों का एक ग्रुप बनाना चाहते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को और बूस्ट अप कर सकें। तो वो जो अपना एक ग्रुप बनाएंगे उसको नाम दिया जाएगा इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव्स। ठीक है, और फिर वो अपना काम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। नाउ आप इसी तरह से ले सकते हैं किसान को कृषक कृषक कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि ये ज़्यादातर केसेस में इस तरह की सोसाइटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। In your district also you could easily find these kind of societies nearby the railway station or somewhere else. Clear? So इन सोसाइटीज का, अब हम इनके वर्किंग स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। इनके वर्किंग स्ट्रक्चर पे अगर आप देखेंगे तो इनका सिंपली जो स्टाइल होता है वो ये होता है कि इसमें जो भी मेंबर्स हैं जो ऐड हुए हैं, ठीक है, वो अपने रिसोर्सेस को पुल आउट करते हैं। रिसोर्सेस मतलब अपने पैसों को, उनके पास जितनी भी सेविंग है, जो भी पैसा वो बचा पा रहे हैं, वो उसमें से कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि उस पैसे को ये लोग उस सोसाइटी में सब लोग मिलके कुछ कुछ अमाउंट अपना जो है वो डोनेट करके एक एक फिक्स अमाउंट इकट्ठा करते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही बात? इट मीन्स दैट all the members of that particular society, of that particular community,
are willingly pull out their resources, pull out their money, and just try to uh, collect a certain amount of money, and after that they are going to bank, they approach to bank. Clear? And the collected money which they had been collected by the members of that particular society, that that amount of money is being presented to the bank as a collateral in order to get a big amount of money as a loan. बात समझ में आई? Let me make it clear to you once again. उस सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, उन लोगों ने सबने कुछ ना कुछ पैसे डोनेट करके एक अमाउंट इकट्ठा कर लिया, और उसको वो फिर बैंक के पास लेके जाते हैं एज अ कोलेट्रल। कोलेट्रल के बारे में मैंने आपको बताया था। कोलेट्रल जो है वो बैंक्स को एज अ फॉर्म ऑफ गारंटी उसे हमें देना पड़ता है, शो करना पड़ता है। चाहे वो कोई एसेट हो, लाइक मशीनरी हो, कोई हाउस हो, कोई फार्म लैंड हो, इस तरह से वो एज अ कोलेट्रल आपको उसको बैंक के पास दिखाना पड़ता है, तभी बैंक आपको कुछ अच्छा अमाउंट लोन का देता है। एज अ गारंटी आपको शो करना पड़ता है। सो उसी तरह से ये जो मेंबर्स हैं, इन्होंने जो अपने पैसे सबने मिलके इकट्ठे किए, इस पैसे को वो ले जाके बैंक के पास एज अ कोलेट्रल रख देते हैं, सब डिपॉजिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? So, with these deposits as collateral, the cooperative has obtained a large loan from the bank. उस अमाउंट को बैंक के पास जमा करने के बाद बैंक उनको एक लार्ज अमाउंट लोन का दे देता है। क्लियर? These funds are used to provide loans to the members. ठीक है? अब वो लोग, जो बैंक ने उनको अमाउंट दिया है, अब उसको उस कम्युनिटी के, उस सोसाइटी के जो भी मेंबर्स हैं, जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे आपस में, वो सब उस लोन को जो बैंक ने दिया है, एक बड़ा अमाउंट जो बैंक ने दिया है, उसको वो सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं एज अ लोन। और फिर वो उस पैसे से अपना जो उनका ऑक्यूपेशन है, जो भी उनका काम है, वो काम करते हैं। अगर हम कृषक सोसाइटी की बात करें, तो कृषक सोसाइटी में जो भी लोग होंगे, वो उस पैसे का यूटिलाइजेशन सिंपली क्या कैसे कर सकते हैं? वो उस पैसे से जो उन्होंने उनको मिले हैं, वो उसको अपने बीज वगैरह खरीदने में, अपने जो उनके फार्मिंग टूल्स हैं, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, दिस काइंड ऑफ टूल्स, they are supposed to purchase and do their farming activities. क्लियर? तो ये बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी का का काम होता है। एंड now this Krishak cooperative provides loan for the purchase of agricultural implements, loans from cultivation and agricultural trade, fisheries loans, loans for construction of houses, and for a variety of other expenses. फिर वो सोसाइटी, जो कृषक सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो उस पैसे को अपने मेंबर्स को एज अ लोन देती है। क्लियर? दिस मच इज सफिशिएंट फॉर यू, एंड the much more detail, if you want to know something extra about this, we will explain also the in-depth explanation of this particular topic to you later on. But I think this was sufficient for you for this period of time. Clear? So this is all about the cooperative society. Now come to the very important area of this chapter. This is the role of RBI. Clear? See, as I had already explained to you that RBI is the bankers, or the father, or the supervisor of the whole bank, and the government also. For government, it is a banker. I'm come to this point.
that how RBI is a banker to the government. So Reserve Bank of India is established near about 1934-35. Please check the date. Most probably 34-35 में इसका establishment हुआ था. So इसका जो बेसिक काम है वो यही है कि ये इंडिया का रिजर्व बैंक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है. तो सेंट्रल बैंक, सेंट्रल एजेंसी का काम क्या होता है कि वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उसके नीचे हैं, उन सबको वो कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है. तो बेसिकली आरबीआई के जो रूल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. लेट मी रीड इट आउट. Start from anti-clockwise. So monetary policy, banker to the government, issues currency, foreign exchange management, supervisor of other banks and bankers bank. Clear? So let me start with the explanation of the bankers bank. So bankers bank का सिंपल मतलब क्या होता है? bankers bank का सिंपल मतलब यही है कि आरबीआई सभी बैंक्स को कंट्रोल करता है, सभी बैंक्स को सपोर्ट करता है. किस सेंस में? फाइनेंशियल सेंस में. क्लियर? इफ एनी काइंड ऑफ financial crunch, financial crisis has been experienced by any particular bank, whether it is private or public, if they are facing any kind of financial irregularities, financial problem, the RBI here plays a vital role in order to support, by supporting the bank, by giving them sufficient amount, sufficient money so that they could survive and run out their business, run out their buck. तो यहाँ पे बैंकर्स बैंक का सिंपल मतलब ये है कि सभी बैंकों को कब के बॉस के फॉर्म में काम करता है. छोटे छोटे बैंक्स जितने भी हैं, हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, जो भी दूसरे बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनमें जो भी इश्यूज होंगे उसको सॉल्व कौन करेगा? आरबीआई करेगा. क्लियर? नाउ कम टू द वेरी इंटरेस्टिंग रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी. जो मॉनेटरी पॉलिसी है, यही पूरा इस जो आरबीआई का जो सबसे बड़ा काम होता है वही मॉनेटरी पॉलिसी ही होती है. बट ये मॉनेटरी पॉलिसी जितनी छोटी आपको दिख रही है उतनी छोटी ये है नहीं एक्चुअली, क्योंकि इसके अंदर it contains very big list, very big, very conceptual components. But here we could not able to go into very depth of all the important tools used by the RBI as a monetary policy. बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई के दो पॉलिसीज होती हैं, एक मॉनेटरी और एक फिस्कल पॉलिसी. तो फिस्कल पॉलिसी तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि दो पॉलिसीज होती हैं. मॉनेटरी पॉलिसी हम इस यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इनके हम कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. क्लियर? सो मैं पहले उनके कुछ बेसिक्स आपको नाम बता देता हूँ. इस मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो हम क्वांटिटेटिव मेथड भी कहते हैं. क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. क्रेडिट कंट्रोल का मतलब ये है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें जितने भी पैसे आ रहे हैं, उन पैसों का यूज़ कैसे करना है, उनको रेगुलेट कैसे करना है, ये इसके रिगार्डिंग जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सब आरबीआई बनाता है. और आरबीआई वो सारे रूल्स रेगुलेशन बनाने के बाद बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि आप इन पॉलिसीज को फॉलो करेंगे अपने कस्टमर्स के साथ. क्लियर? तो मॉनेटरी पॉलिसी में जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उसमें आपका आता है, सबसे पहले आता है बैंक रेट. उसके बाद आता है सीआरआर. सीआरआर का मतलब कैश रिजर्व रेशियो. I have discussed little bit about this CRR in the previous slides, but here I am going to give you some more detail about this CRR, cash reserve ratio. The next thing is SLR. SLR means statutory liquidity ratio.
The another one is OMO. OMO means open market operations. Clear? So bank rate, CRR, third one is SLR, fourth one is open market operation. Then again, few things more here I would like to state, point out that beside these four or five tools, there is one repo rate and reverse repo rate. This is also one of the important tool is being used by the RBI in order to control the credit, repo rate and reverse repo rate. Clear? So these are a few important tools. So you have to learn about it. You have to understand about it. Need not to go into very depth. If you find some free time at your home, just try to go into the depth. It would be beneficial for you. But here, due to the lackness of time, we are bound to discuss the overview only. So basically, what is mean by bank rate? Bank rate simply mean by the rate at which central bank advances loans to the commercial banks. Clear? Or rediscount the first class bill. So simply the rate of interest charged by the commercial bank against their loans. Clear? जो बैंक्स ने बैंक रेट पॉलिसी, जो भी आरबीआई ने जो रेट तय किया है, ठीक है, उस रेट पे वो लोन देने के लिए, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन्स टू द कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है, उसको हम बैंक रेट कहते हैं. क्लियर? समझ में आ गया? आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू यू. Okay, fine. Now the next thing is CRR, cash reserve ratio. What is mean by CRR? Cash reserve ratio simply, this is the most important tools because it is very frequently used by the RBI, and the rate is very oftenly change also, because the CRR is very directly related to the credit creation of the commercial bank. Commercial banks को कितना लोन देना है, पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कितना लोन करना है, उनके पास कितना पैसा बचेगा, इसका जो डिसीजन है वो बेसिकली ये जो आपका सीआरआर है इसके बेसिस पे होता है. तो कैश रिजर्व रेशियो का सिंपली मतलब होता है, व्हाट इज मीन बाय कैश रिजर्व रेशियो? इट मीन्स बाय commercial banks are required to keep minimum percentage of its total deposit with the RBI. क्लियर? कमर्शियल बैंक्स को कुछ पैसा, कुछ परसेंटेज, जो कि कमर्शियल बैंक सॉरी आरबीआई डिसाइड करता है, उतना परसेंटेज पैसे का, टोटल डिपॉजिट का उतना परसेंटेज निकाल के सभी कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना होता है. सपोज हमने कहा कि आरबीआई ने डिसाइड किया कि सीआरआर जो है वो 4% होगा. क्लियर? तो सीआरआर अगर 4% है, तो सपोज करिए कि हमने कमर्शियल बैंक की बात की. कमर्शियल बैंक के पास एक पूरा दिन खत्म होने के बाद जो नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज बचती है, मतलब कि जो उनके पास एक दिन में के एंड में जितना पैसा इकट्ठा होता है किसी भी कमर्शियल बैंक के पास, टोटल डिपॉजिट जितना भी है एक दिन का, उसका वो 4% जो है वो टोटल डिपॉजिट का, वो कमर्शियल बैंक 4% निकाल के आरबीआई के पास जमा करेगी. ये होता है सीआरआर. क्लियर? दिस इज मीन्स बाय कैश रिजर्व रेशियो. ये वो रेशियो है जो कि बैंक को कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना होता है. क्लियर? समझ में आ गया? सिंपली एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. इट मींस द कमर्शियल बैंक्स आर आल्सो रिक्वायर्ड to maintain a minimum amount of their total liabilities in the form of liquid assets.
दिस इज टर्म्ड एज CRR। यहाँ पे लिक्विड एसेट से सिंपल मतलब ये है कि SLR लिक्विडिटी, L से मतलब लिक्विड, सो लिक्विड तो कैश भी होता है, जो कि CRR के केस में कैश को ही रिजर्व के तौर पे बैंक्स के पास कॉमर्शियल बैंक्स रखती है। लेकिन SLR में क्या होता है कि कैश के साथ साथ जो और दूसरे लिक्विड एसेट्स हैं, ठीक है, वो आपके कुछ पेपर बॉन्ड्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि एज अ पेपर हैं बट उनकी लिक्विडिटी है, उनको उसका भी कुछ सर्टेन परसेंटेज जो है वो बैंक्स के पास RBI को रखना पड़ता है। इसका एक बहुत ही वर्किंग स्पेसिफिक इसका वर्किंग क्राइटेरिया है। इफ आई गॉट टाइम देन आई वुड डेफिनेटली ट्राई to make a separate video on the CRR and SLR, how it could work। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए। अभी मैं फिलहाल कुछ बेसिक्स इसके फंक्शन पर डिस्कस करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, so that I could complete it। So हमने CRR देख लिया, बैंक रेट देख लिया, SLR देख लिया। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। इसमें सिंपली कुछ नहीं होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसा कि नाम है बता रहा है कि मार्केट में ओपनली जो है वो चीज़ों को बेचा जाता है। वो कौन सी चीज़ों को बेचा जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन refers to the policy of sale purchase of securities in the open market by RBI। When RBI starts selling the securities in the market, this reduces the cash reserves of commercial bank। क्लियर? तो इसमें सिंपली मतलब यही है कि RBI के पास जो भी सिक्योरिटीज होती हैं, जब RBI को जरूरत पड़ती है तो RBI उसको ओपनली मार्केट में सेल आउट करना शुरू कर देती है। अब उसको जब RBI को ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल क्रंच ऐसा होता है कभी, तो वो उसको सेल आउट करना शुरू कर देती है। उसी को ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। Clear? So I think this much is sufficient in monetary policy। Yes, of course, there is something else which need to be discussed here, but due to the lack of due to the uh, shortage of time, specific time, here I would like to conclude it and move to the next point। The banker to the government is our next point। banker to the government का मतलब simply ये होता है, मैंने जैसे आपको बताया, जैसे RBI दूसरे कॉमर्शियल बैंक्स के लिए बैंकर्स का काम कर रहा है, यानी कि उनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो देता है RBI। उसी तरह से RBI गवर्नमेंट के लिए भी बैंकर का काम करता है, यानी कि जब गवर्नमेंट को कभी अगर फाइनेंशियल क्रंच होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, क्राइसिस होती है, तो गवर्नमेंट भी जो है वो RBI के पास ही जाती है और RBI उनकी हेल्प करता है, ठीक है, विद देयर होल कैपेसिटी। नाउ कम टू द इशू करेंसी। इट इज वेरी मच वेल नोन बाय एवरीवन दैट कि हम जो भी करेंसी यूज करते हैं वो कहाँ से इशू होती हैं, वो RBI से इशू होती है। RBI के गवर्नर के उस पर सिग्नेचर होते हैं करेंसी नोट्स पे, आपने देखा होगा, ठीक है। तो करेंसीज जो ऑथराइज्ड की जाती हैं वो RBI से होती है, ठीक। नाउ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का एक एक्ट पास हुआ था। आप इसको प्लीज इसको नोट डाउन कर लें और इसके बारे में थोड़ा सा नेट से ढूंढें, क्योंकि ये थोड़ा सा ये भी एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, बट इसमें आप बहुत ज़्यादा इसमें भी नहीं जाना है, बट थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए दैट व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। So this foreign exchange management has been basically come into the picture with the Foreign Exchange Management Act, FEMA जिसे कहते हैं। ये FEMA बना क्यों था, ये एक्ट क्यों आया था? ये बेसिकली इसलिए आया था एक्ट की, जैसा कि आप जानते हैं कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड होता है। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ व्यापार करेगी, ट्रेड करेगी, तो उस पर्टिकुलर कंट्री की जो करेंसी है वो दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज हमें करना पड़ेगा। Suppose we are having our currency and the name of our currency is rupee and the name of the currency of US is US dollar। So at the time of any kind of trade, we have to exchange the currencies, both the countries are exchanging their currencies। So वहाँ पे कुछ जो रेगुलेशन एक्ट्स हैं वो भी RBI बनाती है कि ये रेगुलेट कैसे होंगे, इनमें एक्सचेंज कैसे होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, उसके रिगार्डिंग में जो रूल बनाती है वो RBI ही बनाती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू।
क्लियर। इसके और डेप्थ में हम फिर कोशिश करेंगे आगे, जब हमें टाइम मिलेगा तो इसको और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ द लास्ट वन इज सुपरवाइजरी फंक्शन ऑफ द आरबीआई अगेंस्ट द अदर बैंक। तो सुपरवाइजरी का सिंपल मतलब हुआ है कि सभी बैंक्स का जो भी वर्किंग प्रोग्रेस जो भी है उसको जज करने का काम भी आरबीआई करती है। ठीक है, उसका वर्किंग प्रोग्रेस जो भी है उसको जज करने का काम भी आरबीआई करती है, सुपरवाइज करती है उनको कि कैसे उनको काम करना है, वो काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसका रिगार्डिंग सारे जो भी व्यू पॉइंट्स हैं, जो भी अमेंडमेंट्स करने होते हैं वो आरबीआई करती है। सो आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू। Let me skip to the next slide. See again, uh, as you could see on the screen, and I have discussed little bit about this self-help group in the previous slide also. So this self-help group for the poor is simply mean by poor households are still dependent on informal sources of credit because of the following reasons. मैंने आपको जब वो पिक्टोरियल ग्राफ पाई चार्ट जब मैंने आपको दिखाया था, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो रूरल पीपल्स जो हैं वो बेसिकली अभी भी वो इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट के ऊपर क्यों डिपेंड रहते हैं। इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट के ऊपर बेसिकली इसी वजह से डिपेंड रहते हैं क्योंकि एक जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि बिकॉज दे आर इलिटरेट एंड दे आर feeling a kind of insecurity while using the formal sectors of loan, because they are not very much aware about the whole procedures and process. So they feel that the informal sources of loan is quite much more easier to get. Clear. So here, as you could see, the first point that banks are not present everywhere in rural India. ये होता था पहले के केस में कि हर जगह जो है वो बैंक्स प्रेजेंट नहीं थे। अब तो काफ़ी हद तक बैंक्स ने अपना दायरा बढ़ा लिया है और वो रूरल एरियाज को काफ़ी हद तक अप्रोच कर चुके हैं, बट स्टिल अभी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करता है। Now the second point is, even if banks are present, getting a loan from bank is much more difficult, as I already told you that बैंक से लोन लेना बहुत आसान नहीं है, उसके बहुत ही एक लंबा प्रोसीजर फॉलो करना होता है। So rural people find it very difficult and feel it very uh, very discomfort in order to follow this cumbersome process. Clear? जिसमें कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, बहुत से कोलेटरल की जरूरत पड़ती है। Okay, come to the next slide. Self-help groups again, to overcome these problems, people created self-help group. तो ये जब लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स आई कि वहाँ पे बैंक्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही थी, बट उनको पैसों की ज़रूरत तो थी कि वो अपना कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकें, कुछ काम कर सकें। तो वहाँ पे फिर इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट इमर्ज चुका, एंड दिस इमर्जेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज रियली वर्क वेरी वेल in this particular ground. So self-help group all simply are small groups of poor people which promote small savings among their members. उसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह इसमें भी पहले आपस में मेंबर बनना पड़ता है, यानी कि जो उस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर हैं इनकी स्ट्रेंथ बेसिकली 15 से 20 मेंबर्स की हो सकती है। अब वो बेसिकली जो है वो आसपास के अपने इलाके के ही होते हैं और उनको हर वक्त मिलना होता है, रेगुलरली वो लोग आपस में मिलते हैं और वो लोग मिल के वो लोग भी अपना कुछ सेविंग का जो अमाउंट है उसको वो एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। बिल इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट हेल्प्स बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल। अब इसमें भी वही है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है इसका कि उसमें जो मेंबर्स हैं उन्होंने आपस में अपने रिसोर्सेज को पूल आउट किया, अपने मनी को इकट्ठा किया, उसके बाद फिर वो उसको एज अ लोन के तौर पे अपने मेंबर्स को ही देते हैं। अब उसमें किसी तरह की उनको कोलेटरल की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी एक मेंबर को कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो वो उनके पास जाएगा, वो सिंपली उसको बहुत ही ईजिली प्रोवाइड करा देंगे लोन, पैसा। उनको किसी तरह की, जैसे कि बैंक्स में जो प्रोसीजर फॉलो करना होता है कि कोई आपको कोलेटरल शो करना होता है,
एक बड़ा अमाउंट लोन के तौर पे लेने से पहले। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस एंड एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। बहुत ही रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे वहाँ पे लोन मिल जाता है लोगों को। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। रूरल पुअर्स को इससे काफ़ी हेल्प हुई और उनके डेवलपमेंट में, उनके ग्रोथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बहुत रोल अच्छा प्ले किया है। और बेसिकली विमेंस का इसमें काफ़ी इम्पेक्ट है। विमेंस जो हैं वो इसमें ज़्यादा अपना जो प्रेजेंस है वो शो करती है। The regular meeting of the group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence। और जब एक ग्रुप में 10, 15, 20 लोग इकट्ठा होते हैं तो फिर वो और भी दूसरे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं और उसको जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इस तरह के इशू पे बातें होती हैं। ये इसका एडवांटेज है। नाउ एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये सिर्फ स्लाइड्स हैं और इन स्लाइड्स में हम चीज़ों को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ सकते। दैट्स व्हाई आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू प्लीज रीड आउट योर बुक at least for 2 times, line by line, very thoroughly. Clear? Because this PPT presentation simply gives you an overview, an idea of the whole chapter, of the whole concepts. But in order to make your understanding more strengthened, more stronger, you have to go through the book. You have to go through the whole chapter line by line and try to find out uh, the depth information about any kind of institution, any kind of agency which is being mentioned in a chapter. So in this slide, as you could see, the heading is given as Grameen Bank of Bangladesh. This Grameen Bank of Bangladesh is founded by very renowned economist Muhammad Yunus। बांग्लादेश के ये इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने ये ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट इमर्ज किया था। ग्रामीण बैंक, अभी आप जाएंगे तो आपको बहुत सी जगहों पे ये बैंक कभी नज़र आ जाएंगे। ये बैंक बहुत ही इफेक्टिवली काम करते हैं। इनका वर्क कल्चर जो है अच्छा होता है। ये बेसिकली पुअर्स को सपोर्ट करने के लिए लाइमलाइट में आए थे। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो होता है। ये बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट लोन का नहीं देते हैं, नहीं दे सकते हैं। इनकी एक लिमिट है। कमर्शियल बैंक्स का मुकाबला तो ये नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि ये इतना लोन प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि एक रूरल एरिया का कोई आदमी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे या कोई छोटा मोटा काम करना चाहे तो कर सकता है। सो इन 2006 ग्रामीण बैंक and rural and Yunus, the founder of this Grameen Bank, were awarded the Nobel Prize for Peace। और इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। सो ये ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट आपको एज ए जीके के क्वेश्चन पे कहीं पूछा जा सकता है कि हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामीण बैंक। तो आपको इनका नाम याद रखना है। वो मोहम्मद यूनुस थे। कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। क्लियर? सो I'm very much thankful. Basically, one of my student Navya Rai, who had doing all their putting all her effort, very well effort in order to make this PPT, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली आपको एक्सप्लेनेशन देने में इस चैप्टर के। एंड आई एम हाईली थैंकफुल टू यू ऑल ऑल्सो फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। और आप लोगों ने इसको सुना, वीडियो को समझने की कोशिश की। एंड आई अगेन एक्सपेक्ट दैट इन फ्यूचर ऑल्सो यू आर cooperating me in this kind manner. Clear? So here I would conclude and stop the discussion. One information I would like to give you that for your doubt clarification, we will meet live. We will give you the expected date
on which we are going to discuss about your doubts by interacting live. Clear? So thank you so much.